There are many observations, but only observations, no calculation in this particular experiment. We'll start with the ground connection. Obviously, we should start with the measurement of the specification of the board and the devices that we are using. So there is a Tektronix DSO of 50 MHz and 1 GHz samples per second. Because this is a baseband digital modulation technique, there is no need of going for spectrum as such in this particular experiment. So you have a Castronica board with you on which there is a signal generator, you can see, and there is a function generator with sine, square and triangular wave generator. You can generate different types of signals, but we are going to perform experiment only using sinusoidal signal and a variable square wave. So this basically is a variable function, and the above sine wave generator is a fixed sine wave generator. So you can see the sine wave, measure its amplitude and frequency, note it down. Then there is a sine wave of which frequency can be varied using this knob and amplitude can be varied using this knob. Check out what is the maximum amplitude, what is the minimum amplitude, then what is the maximum frequency, what is the minimum frequency. Then there is a square wave of which amplitude cannot be varied, amplitude vary नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है मिनिमम और मैक्सिमम चेक करो. फिर है ट्रायंगुलर वेव, फ्रीक्वेंसी कितनी है मिनिमम और मैक्सिमम चेक करो. Then you are supposed to note down all the ICs which are present over here. 4013 is a sampler switch IC, 7404 is a NOT gate, 7483 is adder, binary adder. You have implemented BCD adder using a binary, so it is simply adder. 74373 is a lag. So as I told you, you have a comparator. In feedback you have logic that will give you the previous sample value and the addition of all previous error. So for doing the addition 7483 is there, लेकिन कोई एरर अगर नेगेटिव होगा तो पहले उसको लॉजिकली नेगेट करेगा और फिर ऐड करेगा, इसलिए 7404 है. और 74373 is latch that will store the data for certain one clock duration. So entire this control feedback output is connected over here DAC, and the output of this feedback आप लोगों ने देखा होगा, वो मैंने कंपैरेटर की सेकंड इनपुट पे दिया था. तो here you will be having this DAC output, ठीक है, and first input will be signal output, and this feedback should be connected in the system. So इन दोनों को हमको short करना है, right? So that are the connections which are expected in this. Once you observe all this signal, note down the ICs. There are three different sampling. Here you can see the sampling clock which is derived from actual clock is there. So all switch on the left hand side. When first switch on the right side, you can see the sampling frequency is 8.33 kilohertz. Sampling frequency is 8.33 kilohertz. Second switch on the right gives you 16.66. Third on the right is 41.66. So these are the three frequencies on which you can operate. So what happens, what is the effect of different sampling frequencies? I told you predictive coding basically is dependent on the sampling frequency. More the sampling frequency, better will be the performance. That is what we are going to verify. For timing, I make this as 8 kilohertz. When I make this as 8 kilohertz, I told you that bit period is equal to how much? It is equal to TS, that is 1 upon Fs. So DAC के आउटपुट पे आपको एक रेफरेंस स्टेप सिग्नल मिलेगा. You can see this is the reference step signal at the output of the DAC. So observe this, keeping this equal to 8 kilohertz. Now take the cursor, source obviously will be channel. Check out its period, time period. So किसी भी एक स्टेप पे जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक कर्सर लाना है और जहाँ पे एंड हो रहा है. How much this time will be? Can anyone guess? See, the sampling frequency is 8.33 kilohertz and this is 1 upon sampling frequency. So this will be 1 divided by 8.33, that is 120 microseconds. साथ में then switch to amplitude and check out its step height. Step height मतलब एक step जो delta हमने measure किया था. So that is your delta t, and delta t will be equal to Ts, and this is delta V, that is 240 millivolt. This can be varied using this knob. You can see that the step height is incremental. लास्ट वाला मत मेजर करना, उसमें थोड़ा सा ग्लिच है, इसलिए सेंटर में कोई तो मेजर कर. तो स्टेप हाइट कैन बी इंक्रीमेंट.
ठीक है। अब स्टेप हाइट भी वैरी कर सकते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी वैरी कर सकते हैं टू चेक आउट द इफेक्ट ऑफ दोज ऑन एनी पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑफ द सिग्नल, डीएम का परफॉर्मेंस जज करने के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा प्रोसीजर करेंगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, सो विल स्टिक टू लेसर नंबर ऑफ स्टेप। देन मेक इट 16 किलोहर्ट्ज। ऑब्वियसली द स्टेप हाइट इज़ नॉट चेंज, यू कैन सी उतनी है जितनी पहले सेट की थी, लेकिन द कर्सर इन टाइम डोमेन, आप बता सकते हो पीरियड कितना आएगा? कैन एनीवन गेस? हाउ मच इज दिस फ्रीक्वेंसी? 16.66 किलोहर्ट्ज। पहला कितना था? 8.33। तो अभी पीरियड कितना आएगा? 1/16.66। दैट इज, पहले कितना आया था? तो अभी फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो पीरियड हाफ हो जाएगा, 60 माइक्रोसेकंड। And for this it will be 1/41, so it will be 16 सोडूने 32, 2.5, 1/2.5 माइक्रोसेकंड चेक करा तो कितनी, ठीक है। ऑल दिस स्टेप साइजेस यू कैन कंट्रोल। नाउ कीप दिस एज 8 किलोहर्ट्ज। नाउ स्टार्ट विथ द एक्सपेरिमेंटेशन। ऑल स्पेसिफिकेशन आयसीज ॲटलिस्ट नंबर तरी लिहून घ्या, कारण जर्नलमध्ये लिहायचं आहे, नंतर पाहिजे तर गूगल करून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता। सो सिग्नल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, डिफरेंस इज एनकोडेड, डिफरेंस कौन देने वाला है? ये, तो ये दोनों को कनेक्ट करना है। सेकंड इनपुट इज प्रेडिक्टेड सिग्नल, प्रेडिक्टेड सिग्नल विल बी आउटपुट ऑफ द फीडबैक लॉजिक, दैट शुड बी कनेक्टेड ओवर हियर। लेकिन ये फीडबैक भी सिस्टम में कनेक्टेड होना चाहिए, सो कनेक्ट दिस हियर। ये तीनच कनेक्शन है, बाकी सगळं ऑब्जर्वेशन है। सो टू वन चैनल आई विल कनेक्ट द ओरिजिनल सिग्नल दैट इज कनेक्टेड, एंड टू अदर चैनल फर्स्ट we will observe the data। जो मैंने वहाँ पे दिखाया था वो यहाँ पे दिखेगा ऐसे। सिग्नल यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर से पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर से पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर से पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट। सो आप जब लिखोगे, जर्नी में ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही सिग्नल ड्रॉ करोगे। साइन वेव का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी लिखोगे, इसका स्टेप हाइट कितना था और टीएस कितना है, ये दोनों लिखोगे। सो दिस इज एक्चुअल सिग्नल, दिस इज प्रेडिक्टेड सिग्नल। अब इसी के नीचे एक्चुअली आउटपुट सिग्नल दिखना चाहिए, लेकिन अपने पास 3 चैनल डीएसओ नहीं है, सो हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे। एक चैनल पे डैक रखेंगे और दूसरे पे हम डीएम का आउटपुट देखेंगे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डीएम आउटपुट यू कैन सी दैट दिस इज नॉट अ स्क्वायर वेव, दिस इज अ डिजिटल सिग्नल विथ 4 ones and 4 zeros। ईच इंक्रीमेंट गिव्स यू सिंगल वन, जैसे बताया था। ये 4 इंक्रीमेंट है, इसलिए 4 वन होते, ठीक है। ये आता फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून हे करतो मी। सपोज मी ही स्क्वेअर वेव्ह लावली, ठीक आहे। इथे हा 1010 होतो, तर हा पण 1010। इथे एकाचा पिरियड जर चेक केला ना, तर दॅट पिरियड विल बी इक्वल टू टीएस, दॅट इज 120 मायक्रोसेकंड। आपल्या केसमध्ये सुद्धा ते मी दाखवू शकतो, पण ते समजायला आता जसं इमिजिएटली बिहार म्हटले की आहे ना, दॅट इज स्क्वायर वेव, बट दैट इज नॉट स्क्वायर वेव, बिकॉज स्क्वायर वेव इज नॉट अ डिजिटल सिग्नल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इफ यू टेक अ कर्सर एंड इफ यू चेक आउट द टाइम पीरियड ऑफ 4 ones, दैट विल बी 480 मायक्रोसेकंड। तो ते थोडंसं पुढे गेलं, 480 मायक्रोसेकंड, बिकॉज 4 ones आर देअर, 120 मायक्रोसेकंड इच। ह्याच्यामध्ये 1 बिटचा डिले आहे। हिअर इट इज गोइंग टू 0, बट एक स्टेप आधीच 0 जातो आहे, इकडे इथे 1ला जातो आहे, तो एक स्टेप आधीच 1ला जातो। सो दॅट इज 1 बिट डिले सिस्टम। सो दिस इज आउटपुट। हे आउटपुट आल्यानंतर रिकव्हरी बघायची, टू ऑब्झर्व द रिकव्हरी। ॲज आय सेड, ॲक्च्युअली आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, बट इथे आउटपुट जो आहे तो एन्कोडेड आहे, त्यामुळे हा आउटपुट इंटिग्रेटरला देऊन चालणार नाही। हा आउटपुट इंटिग्रेटरला दिला तर तुम्हाला ट्रायंग्युलर वेव्ह दिसेल, ठीक आहे, विच इज नॉट द केस।
सो डॅकच्या आउटपुटला जे येतं दॅट इज ॲक्च्युली इंटिग्रेटर्स आउटपुट. सो कनेक्टेड डिरेक्टली टू द लो पास फिल्टर. हिअर यू गेट द रिकवर्ड साइन वेव. ठीक आहे. कंपेअर द रिकवर्ड साइन वेव विथ ॲक्च्युअल साइन वेव. You can see that the blue one is the actual signal, the yellow one is recovered signal. It is lesser sine wave and more triangular wave. Triangular wave has harmonics. Harmonics is noise. That means for 8 kilohertz, signal is recovered with delay and many unwanted frequency component. When I make it 16, हा थोडा साइन वेव कडे आलेला आहे ॲज कम्पेअर टू ट्रायंग्युलर. थोडासा डिले जास्त आहे. आणि तेच मी ज्यावेळेस हे करतो 41 करतो, आता बघा आता ती ऑलमोस्ट प्युअर साइन वेव. सो ॲज द सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस द परफॉर्मन्स गेट्स बेटर अँड बेटर. तुम्हाला ड्रॉ करताना पहिले सिग्नल, मग तो प्रेडिक्शन, मग DM आउटपुट आणि मग वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीजसाठी काय रिकव्हरी हे ड्रॉ करायचं. पहिले एवढं ऑब्झर्व करा, मग पुढचं करा.